So Sachi is going to sing the Aarti, and your favorite Janvi is going to perform, offer the Aarti. So Sachi, you can start. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुणे दासे ऋण पे काटी दीना बल दिया करा जमान सिरनी जमाना सिरा Pabindu diya sound is अपराधा बेहाता कब गरीब नाम सुखे अपराधा बेहाता गुरु तेरे बंधु दिया बड़ी दास Atihina दिया करोए दासे ऋण पे काटीना सबे नभी था Nayan बिंदु दिया से काटीना शक्ति बुद्धि तुम्हारा दीना आत्मा सा शक्ति बुद्धिहीन Ami atidina korumore आत्मा सा बिंदु रोई दास ऋण पे काटीना Who is the boy? Baby friend. School time friend from Vivo are Vivo are Bindu diya se Beka Artina Bindu diya Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Everybody Ram, unmute, please. Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Shila Guru Dev, Jaya Shila Guru Dev, Shila Guru Dev, Jaya Shila Guru Dev, Jaya Shila Guru Dev, Jaya Shila Guru Dev, Shila Guru Dev, Jaya Shila Guru Dev, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jaya Jaya Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Dominant Bhakti Ashwa Vaishnav Swami Maharaj Ji ki Jai. Yay! Thy God, Premanande, Hari Hari Bol. Hari Bol. So, thank you so much again, Gaurav Prabhu, for organizing this wonderful morning and darshan of Maharaj on this most auspicious day of Maharaj appearance day and his Vyas Puja day. So, everybody will try to offer glorification to Maharaj. Very short offering. Who is going to start? Your Grace, Prabhuji may start. Okay, sure. So let me start. So Gurudev, अगर हम सब मिल करके लाखों मुखों से भी आपके प्रेज करें और लाखों सालों तक भी प्रेज करें तो it will not be adequate. But as your unworthy disciples, it is our duty to offer this praise on your lotus feet for our own purification. So गुरुदेव ये कहते हैं कि लॉर्ड नित्यानंद के चरण कमलों में हजारों मून का कूलिंग इफेक्ट होता है. And you, Gurudev, are the personification of the mercy of Lord Nityananda. And we can all feel that same cooling effect when we have even your shortest of association. Your association, Gurudev, is the key to liberation for us. Your words, aapke words, they can deliver us from all the sins. Gurudev, your one smile can take all the anxieties away from us. So हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन को अपने चरण कमलों में जगह दें ताकि हमारा मन भगवान की सेवा में लग सके. We all beg that you let all of us to be always engaged in your services birth after birth.
ये जो गीता एकेडमी है ये छोटे से 5-6 बच्चों से शुरू हुई थी। जब लास्ट ईयर आप घर पर आए और आपने देखा, इन बच्चों को ब्लेस किया, और आज ये लगभग नॉट ओनली यंग किड्स बट ऑल्सो देयर पेरेंट्स, ये 55 फैमिली मेंबर्स जुड़ करके एक परिवार बन गए हैं, एक कुल बन गया है ये। और आप हमारे कुल गुरु, हमारे परम पिता इस परिवार के हैं, और सभी को बांधने वाले जो सूत्र हैं वो आप ही हैं, सभी आपसे बंधे हुए हैं। द जड़ फॉर द ट्री is the roots of this tree is you, and your love and compassion is flowing in everybody's heart. So एक यही प्रार्थना है महाराज कि आप हम सबको इसी तरह से जोड़ के रखें अपने चरण कमलों से। थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्णा। Yes, anybody would like to say something? Vrindeshwari? Hare Krishna Maharaj, I am very fortunate to have your association in Geeta Academy. मतलब जब मैं छोटी थी तब मुझे महाराज की लेक्चर सुनना इतना अच्छा लगता था कि मतलब मन करता था महाराज की लेक्चर 2-2 घंटे सुनते ही रहो। महाराज इतने डीपली कृष्णा की जो ग्लोरी मतलब लीलाएं बताते हैं इतने डीपली। और जब मेरी मम्मा लेक्चर सुनती थी महाराज के तो मैं उनके पास आके बैठ जाती थी, ओ आज भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज का लेक्चर है, मैं भी सुनूंगी। और मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि मैं महाराज की मतलब ग्लोरिफिकेशन कभी कर पाऊंगी। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच गीता अकेडमी, थैंक यू सो मच महाराज फॉर गिविंग योर एसोसिएशन। हैप्पी अपीयरेंस डे महाराज। हरे कृष्णा। वृंदेश्वरी की माताश्री। Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisance on your stage. Thank you Vinodjan Prabhuji for giving us this opportunity और इतने exalted वैष्णव हैं। सच वृंदा सच में बोल रही है कि हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा है कि जो मतलब सन्यासी सीखते हैं उनका हमें डायरेक्ट जो है सानिध्य प्राप्त होगा और उनके अंडर हम जो है बहुत सारा कुछ कर पाएंगे। वी आर वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली। जो भक्ति की जो की है, जो बेन है, जो कोर ऑफ द हार्ट है, वो है चैंटिंग। तो महाराज की जो इंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग जो चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यही सबसे उत्तम है। हालांकि मैं बहुत अच्छे से उसको ले नहीं पा रही हूँ, मेरी पात्रता इतनी अच्छी नहीं है, पर महाराज की मर्जी जो है वो फ्लो हो ही रही है रेगुलरली। तो महाराज प्लीज ब्लेस अस कि हम जो है आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाए। आप मतलब ग्लोरिफिकेशंस तो इतनी है कि मैं कल आपका पूरा लाइफ स्केच पढ़ रही थी, उसमें बताया जैसे आप पंजाब जैसे एरिया में जाके जो है प्रचार कर रहे हैं। वो जब मुझे पता चला था, सो हैप्पी बिकॉज माय पेरेंट्स वहीं के हैं और मैं कोरोना के पीरियड में 1 साल वहीं रही और इतना रोई हूँ उस पीरियड में कि मुझे एसोसिएशन इतना मिस करी। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे कोई डिवोटीज भी हैं, कौन होगा, किसके पास जाऊंगी, और इतना एनवायरनमेंट भी नहीं था कि घर से निकल के मैं अकेली चली जाऊँ वहाँ पे। फैमिली की तरफ से इतना नहीं था। इस बार इतनी खुशी हुई कि मतलब ऐसा लगता था कि जैसे वो जो मैं उस टाइम का पीरियड था वो आज जो है सक्सेसफुल हुआ है। और वो क्योंकि मेरे पेरेंट्स कुछ थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होंगे उसमें, जो आप अमृतसर का विजिट किया। तो थैंक यू सो मच महाराज। थैंक यू माता जी। अर्पित प्रभु। हरे कृष्णा। गुरु महाराज धन्यवाद, प्रणाम सब भक्तों को धन्यवाद। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक शुद्ध भक्त का ये होता है कि मतलब उनके दर्शन मात्र से हम हमारा मन और चित्त एकदम क्लीन हो जाता है, एकदम फील होता है कि यस अब सही जगह पहुंच गए। तो मैं डिस्कस कर रहा था, काफी सारे डिवोटीज है जो महाराज के अंडर में है और जो फर्स्ट टाइम मिले, सबने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि महाराज से मिलते ही, पहली बार मिलते ही एकदम ऐसे अंतःकरण शुद्ध हुआ कि मतलब तब जाके ही लगा कि अब अभी तक आग में पड़े थे और अब सही जगह आ गए। सही है महाराज, ये जितना ग्लोरिफिकेशन किया जाए उतना कम है। महाराज इतना तपस्या से करते हैं और इतना भाव है महाराज का भगवान के प्रति। तो महाराज आप इस शुभ दिन पे आपसे यही प्रार्थना है विशेष रूप से कि आप प्लीज अपने चरण कमलों में हमको रखिएगा हमेशा। बहुत नालायक हूँ महाराज, बहुत गलतियां करता हूँ, करता रहूंगा, कोई गारंटी नहीं है।
बट एक यही गारंटी है कि आप बहुत मर्सीफुल हैं महाराज, तो प्लीज कभी रिजेक्ट मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। गुरुदेव, सबको ये डर है अंदर से कि जिस तरह से, जिस स्पीड से आपका यश बढ़ रहा है, आप गीता एकेडमी को इतना टाइम दे पाएंगे क्या फ्यूचर में? अभी आप गीता एकेडमी के एक एक बच्चे को इतने प्रॉपर शेल्टर दिए हैं, आप सबको इतना ख्याल रखते हैं, सबको इतना प्यार देते हैं, तो अभी तो हमें आपका एसोसिएशन इतने इजीली मिल जाता है, लेकिन फ्यूचर में कैसे मिलेगा ये सबको एक डाउट रहता है, डर रहता है। तो एनीवन एल्स? रेनू? हरे कृष्ण महाराज, वेरी हैप्पी अपीयरेंस डे महाराज। महाराज मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं आपके बारे में कुछ बोल पाऊँ, लेकिन बस मैं तो अपनी फीलिंग्स बता सकती हूँ कि आपके आने से मैं भक्ति कर पा रही हूँ, जो थोड़ा सा भी भक्ति में कुछ कर पा रही हूँ, उसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं था महाराज। आप इतने मर्सीफुल हो कि कुछ आपसे कुछ बात हम शेयर करते हैं तो सिर्फ उसको शेयर करने से ही वो बात खत्म हो जाती है। मैं तो मतलब मेरे हार्ट में से वो बात खत्म ही हो जाती है, भूल जाती हूँ। मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम आपसे शेयर करती हूँ तो इमिडिएटली वो खत्म हो जाती है महाराज। महाराज आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमेशा ऐसे ही आप हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखें और अपनी शेल्टर में हमें रखें, बिकॉज इसके बिना और कुछ भी नहीं है। आपसे ही हमने सीखा है कि गुरु और गौरांगा के अलावा कुछ भी नहीं है, ये लाइफ सिर्फ उनको ही सर्व करने के लिए है। तो बस आपको ही सर्व करना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग। प्लीज आप अपनी शेल्टर में रखना हमेशा हमें। थैंक यू सो मच महाराज। क्यों जानवी? कृष्ण महाराज, पंचांग प्रणाम। तो महाराज आपकी एसोसिएशन या आपको जानने से पहले तो हम बस हवा में कर रहे थे, तो अभी भी कुछ नहीं कर रहे, बट आपकी मर्जी से मतलब जो भी कर रही हूँ सब आपकी मर्जी से कर रही हूँ। एंड मतलब जब आपकी सर्विस करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है महाराज, इट इज माय फेवरेट थिंग। मतलब आपकी एसोसिएशन में थोड़ी देर के लिए भी मिलती है तो आई ट्राई कि आई सर्व यू, दो उसमें मैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मिस्टेक्स करती हूँ महाराज, बट आप इतने मर्सीफुल है कि आप उसे भी फॉरगिव कर देते हैं। एंड मैं इतनी इनसिंसियर हूँ एंड मैं हमेशा इतनी मिस्टेक्स करती हूँ एंड स्टिल आप फॉरगिव कर देते हैं। थैंक यू सो मच महाराज, एंड प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर सर्वेंट। आई एम सिंपली योर्स। श्वेता माता जी? Hare Krishna Maharaj, koti koti pranam unto your lotus feet. Maharaj, I don't have words to express, no matter how much we glorify you. But Maharaj, I know that all the devotees present here have only one desire, and that is Prati Janme Kori Asha Charanera Dhuli. Maharaj, if we get shelter at the even dust of your lotus feet, Maharaj, that would be the goal of our life. Maharaj, I was only 16 when I met you. And since I was 16, you had taken so much personal care of me, Maharaj. I can't even thank you enough, Maharaj. You have raised me in Krishna consciousness. I was a child and now I am growing up before your eyes. And I know, Maharaj, that every single day you have so much concern, so much love, and you are every day raising all of us, Maharaj. We are getting raised under your shelter, your guidance. And we only have one desire, Maharaj, that birds after birds, we get dust of your lotus feet. Maharaj, Guru Rangri Padme Manashtena Lagnam Tatha Kim Tatha Kim Tatha Kim. What is the use, Maharaj? If we get all the wealth in the world, all the opulence in the world, but if we do not have our minds fixed at your lotus feet, there would be no use, Maharaj. So Maharaj, on this auspicious day of your appearance day, please bless us and give us your mercy that we remain under your shelter and we remain attached to only your lotus feet, Maharaj. We all want to be yours for life, Maharaj. Just want to be yours. There is nothing else that we want. We are forever yours. As Vinojan Prabhuji says, it is my favorite line. Vinojan Prabhuji says that we are your boys and girls. And we always want to be your boys and girls, Maharaj. We just want to be yours. Thank you so much, Maharaj, for everything. Thank you so much. Hare Krishna.
Thank you, Mataji. Nitai Prabhu is here. Nitai Prabhu. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। So, Hare Krishna Maharaj, please accept my most respectful obeisances. It's my great fortune to be able to express my deep gratitude on such a wonderful and auspicious, very special day of your appearance. So, as I expressed in the video, your humble and friendly nature, speaks for itself. The way you are able to deal with, patiently deal with all the children and also the parents like us who go through so many struggles. You hear us, you counsel us, you guide us, you encourage us, you care for us. So they're not, we cannot, describe our gratitude enough in words. And of course, your beautiful lectures, Maharaj, so much profound wisdom, so much deep realizations, and so much you cover, the depth of the knowledge. So it's wonderful to, be able to listen to them. And of course, we have been so fortunate in the last 1 year. We have gone to so many different yatras with you. And each one has been so memorable, whether it was Puri, Rishikesh, Vrindavan, Mayapur, eating, Chappan Bhog with you together. So we were so fortunate to go to all these holy places under your guidance. And I think the most, it's so wonderful to see all these children take up this process so seriously under your guidance and the inspiration of Vinod Jain. So I just want to, express my unlimited thanks to you and, seek your blessings so that we may become more sincere and serious, try to become the servants of the servants of Lord Chaitanya. So thank you very much, Maharaj. And I just pray that Krishna continues to bless and empower you to do so much wonderful service for Srila Prabhupada's mission. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Puja Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hari Bhakti Prabhuji is here. He's leader at ISKCON Jaipur. So Sure, can sure. we? Yes, sure. Hari Hari Bhakti. Bhakti Prabhuji. हरे कृष्ण धर्म प्रणाम प्रभु जी सन माता जी। हरे कृष्ण धर्म प्रणाम महाराज। तो महाराज आपके इस शुभ दिवस पर मेरी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज। और महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन जैसे आप सभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वैसे हम लोग प्रारंभ से महाराज से कनेक्ट हुए हैं। और राजस्थान में जो प्रचार प्रारंभ हुआ जोधपुर से, शायद जो यहाँ पर सारे भक्त हैं उनको पूर्ण ना पता हो, पर जो भी प्रचार प्रारंभ हुआ प्रारंभ से राजस्थान में, वो जोधपुर से प्रारंभ हुआ। जब महाराज जोधपुर में आया करते थे और हमारे कॉलेज में आकर के महाराज प्रचार करते थे, बेस पर जब हम लोग थे तो वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं थी ज़्यादा। तो उन सुविधाओं के अभाव में भी महाराज जब भी हम लोग बुलाते थे तो महाराज वहाँ आते थे और आकर के हम सबको गाइड करते थे। और उसके बाद फिर वहाँ से महाराज की कृपा से अलग अलग सेंटर शुरू हुए। और हम देखते हैं शुद्ध भक्त की कृपा के बारे में हम लोग वर्णन सुनते हैं कि उनकी कृपा से जो स्थान है वहाँ पर कैसे परिवर्तन आता है। जैसे राजस्थान को मरु स्थल मानते हैं हम सभी लोग, एक ऐसा स्थान जहाँ पर इतना सब कुछ प्रकृति के मामले में इतना समृद्ध नहीं है, तो वैसे भक्तों के मामले में भी यहाँ पर मरुस्थल ही था। पर जब महाराज यहाँ पर आए, महाराज के चरण पड़े, तो ये पूरा जो मरुस्थल है ये भी हरा भरा हो गया। आज जो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त हैं राजस्थान में, और जो सेंटर्स हैं
जो प्रचार के केंद्र है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं महाराज के एबल गाइडेंस के अंदर। तो ये महाराज का विशेष व्यक्तित्व है कि महाराज इतने सारे भक्तों को एक साथ गाइड कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं और प्रचार की प्रेरणा दे रहे हैं। एक विशेष बात जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा आप सबके मध्य में महाराज जी के बारे में, कि जब हम महाराज जी के मध्य रहते हैं तो एक विशेष महाराज अवसर देते हैं हम सबको ऐसा अनुभव करने का कि हम सब बहुत विशेष हैं। जनरली हम किसी बड़े पर्सनैलिटी के बीच में रहते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता क्योंकि उनका पर्सोना है, पर महाराज हमको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं और ऐसा हमको अनुभव कराते हैं कि हम महाराज के लिए बहुत विशेष है। और ये हर एक व्यक्ति का एक फीलिंग है, सिर्फ मेरा ही नहीं, जो भी व्यक्ति महाराज के संपर्क में आता है सबका एक विशेष अनुभव रहता है कि हम बहुत विशेष स्थान रखते हैं महाराज के जीवन में। तो ये महाराज इस प्रकार से सब भक्तों के साथ बहुत सुंदर प्रकार से डीलिंग करते हैं। जैसे कि अभी प्रभु जी ने बताया पूर्व में कि महाराज टायरलेसली ट्रैवलिंग करते हैं हर जगह। जैसे अभी कोई भी टूर आता है महाराज से संपर्क करता है, महाराज जब अगर महाराज के पास समय होता है तो महाराज मना नहीं करते, उन सबके साथ महाराज टूर पे जाते हैं और इतना थकने के बावजूद महाराज लगातार ट्रैवलिंग करते रहते हैं। जैसे अभी महाराज राजस्थान टूर पर आते हैं तो हम सभी लोग चाहते हैं कि महाराज हमारे स्थान पर और मंदिरों में भी आएं और भक्तों को प्रेरणा दें। तो हम महाराज के साथ 1-2 दिन रह के भी हम लोग भी यहाँ पर ट्रैवलिंग करते हैं, इंटरनल ट्रैवलिंग और प्रीचिंग करते हैं। पर जब महाराज यहाँ आते हैं 1-2 दिन ट्रैवलिंग में भी हम इतना थक जाते हैं कि हमको 7 दिनों तक फिर महाराज के जाने के बाद रेस्ट करना पड़ता है। और महाराज वो हेक्टिक शेड्यूल हर दिन फॉलो करते हैं और लगातार उस चीज को पालन करते हैं। तो ये महाराज का विशेष गुण है प्रचार में सब भक्तों को इंस्पायर करने के लिए। महाराज और एक नेचुरल लीडरशिप जो महाराज में है, ये हम लोग बहुत समय से महाराज के संग में जब हैं, महाराज की कृपा से उसको अनुभव कर रहे हैं। देख, नेचुरल लीडरशिप क्या होता है जो महाराज हमको समझाने का कई बार प्रयत्न भी करते पर हम लोग समझ नहीं पाते। वो ये है कि महाराज खुद के साथ स्ट्रिक्ट है पर दूसरों के साथ बहुत लीनियंट रहते हैं। जनरली एक जो लीडर बनने का प्रयत्न करता है तो वो प्रयास करता है, दूसरों के साथ स्ट्रिक्ट रहता है, खुद का जीवन शायद इतना स्ट्रिक्ट ना हो प्रिंसिपल्स में। तो महाराज इसके विपरीत अपने लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट हैं साधनाओं के अंदर, और जब बात आती है दूसरों को इंस्पायर करने की तो महाराज उनको फोर्स नहीं करते, इंस्पायर करते हैं प्रेम से। ये जो गुण है ये सब भक्तों को महाराज से इतना आकर्षित कर देता है कि सब लाइफ लॉन्ग वो लोग महाराज की सेवा करना चाहते हो, महाराज के शरणागत बन करके रहना चाहते हैं। तो ये हमारा विशेष सौभाग्य है कि महाराज जी का संगति हम सब भक्तों को प्राप्त है। खासकर मैं अपने जीवन के बारे में अगर कहूँ तो जो भी प्रगति मैंने देखा पहले दिन से लेकर के अभी तक, और आगे भी जो उम्मीद है, जो आशा है, वो इसीलिए है क्योंकि महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा साथ में रहेगा। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराज जी इस प्रकार से हमको गाइड कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे राधा मदन मोहन जी से, श्री श्री गिरधारी दाऊ जी से जो जयपुर के विग्रह हैं, और राधा गोविंद देव जी से कि महाराज जी का स्वास्थ्य जो है वो अच्छे प्रकार से रहे, जिससे महाराज हम जैसे और कई लोगों को और हमको भी लगातार प्रेरणा देते रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, विनोद प्रभु जी, if you allow संकर्षण प्रिय प्रभु जी को भी। Yes, sure, संकर्षण प्रभु। संकर्षण प्रिय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम महाराज जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी एंड माता जी। Thank you for giving me chance to say something about महाराज। तो एक बार अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे कि जैसे जीवों के लिए गोस्वामी है जीव गोस्वामी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे मैं सिलसिले में आपको शेयर कर रहा हूँ, आपने सुना भी होगा। वैसे जैसे हमारे लिए जो बोल सकते हैं कि बद्ध जीव, हमारे लिए जो महाराज हैं वो क्या है, वैष्णव महाराज। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने इनको नाम दिया है भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी। तो आश्रय मतलब महाराज सभी को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और प्रैक्टिकली एक बार महाराज ने बताया था हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा में कि जो है
बता रहे थे कि एक आदर्श शिष्य का क्या कार्य होता है। तो उसमें बहुत सारे प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से पूछा सबसे, तो सबने अलग अलग उत्तर दिया। तो महाराज ने बताया कि जो एक आदर्श शिष्य होता है वो अपने गुरु को फॉलो करता है स्ट्रिक्टली। तो महाराज में ये गुण है कि महाराज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। और कई बार हमने देखा है कि महाराज का कई ट्रिप होता है और अगर गुरु महाराज उनको कुछ आदेश देते हैं तो महाराज सब कैंसिल कर देते हैं। तो महाराज जो है उनका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के इंस्ट्रक्शन से। और आज भक्ति में जैसे कि अभी हरि भक्ति प्रभु ने बताया, राजस्थान में हम लोगों को बहुत संग मिला है महाराज का, लेकिन मैं अपने लिए तो ये बोल सकता हूँ कि जैसे एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, वो एक अपने देखा हुआ अपने मूवीज में बताते हैं कि अमीर व्यक्ति की जो औलाद होती है वो केयर नहीं करती, तो वैसे ही महाराज का 2007 से हमको एसोसिएशन मिला है। 2007 दिसंबर 2008 में मैं फर्स्ट टाइम महाराज के कांटेक्ट में आया था। और महाराज कभी फील ही नहीं होने देते कि महाराज बहुत स्पेशल हैं, जैसा अभी हरि भक्तिपुर ने बताया, एकदम उस व्यक्ति के लेवल पे आके डील करते हैं। तो बहुत कंफर्टेबल व्यक्ति फील करता है अपना हृदय खोलने में। जैसे और कोई सन्यासी हो और कोई डिवोटी हो तो बड़ा मुश्किल होता है हार्ट रिवील करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भक्ति का। तो महाराज मौका देते हैं, बड़ी आसानी से महाराज के साथ शेयर कर सकते हैं। और एक छोटा सा चीज मैं बता, एक स्पेशल मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट था कि मुझे ज्वाइन करना था आश्रम। और जो मेरा फैमिली है वो ट्रेडिशनल जाट फैमिली है, तो वो बहुत ही जो है पिटाई विटाई करने वाले लोग हैं, और मतलब हमारी खुद की भी पिटाई कर देते हैं, बच्चों को भी पिटाई करने वाले लोग हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। तो मैं सभी डिवोटीज से पूछता था कि कैसे ज्वाइन करना होगा आश्रम, कैसे ज्वाइन करना होगा। तो आप तो जानते हैं ना कि अलग अलग प्रकार से पुलिस से आती हैं मंदिरों के अंदर, बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो मैं महाराज से पूछा महाराज क्या करना चाहिए, तो महाराज ने बोला देखो सिंपल सा तरीका है, घर जाओ, पूरा मुंडन करा के जाओ, धोती कुर्ता पहन के जाओ, बड़ा सा तिलक लगा के जाओ, एक बार में ऑपरेशन हो जाएगा। तो मेरे में स्ट्रेंथ ही नहीं था, मैं कैसे फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे घर वालों का बड़ा डर लगता था कि वो पिटाई विटाई नहीं कर दे। महाराज ने बोला पिटाई कर देंगे तो और अच्छी बात है, जल्दी छूट जाओगे। तो ये स्ट्रेंथ लेके जैसे तैसे मैं हिम्मत, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं इतनी आसानी से घर वाले अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे ज्वाइन करने के लिए, तो ये स्ट्रेंथ लेके मैं डरता डरता घर पे गया। और जैसे महाराज ने बोला था धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के, तो उसके बाद तो खैर बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन बड़ी आसानी से जो ऑपरेशन हो गया, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं आया मैंने देखा मेरे फैमिली में। अदरवाइज हम देखते हैं इतना इश्यूज आते हैं। तो महाराज बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं जिसको फॉलो करना मुश्किल लगता है और बहुत प्रॉब्लम, मतलब उस समय क्योंकि ईगो को हर्ट भी होता है बहुत सारे, लेकिन उसको फॉलो करने के बाद रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। और इसके अलावा मुझे एक बार पर्सनल सर्विस करने का मौका मिला था लास्ट ईयर मैं महाराज का जो है ट्रैवलिंग सर्वेंट बना था। लेकिन महाराज का शेड्यूल देख के तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई, और उसके बाद जो है उस समय दोबारा उसके बाद मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि मैं ट्रैवलिंग करूं महाराज के साथ, क्योंकि इतना ट्रैवलिंग स्ट्रिक्ट रहता है महाराज का। और जब मैं पहली बार महाराज के साथ सर्विंग करने गया, अभी चंडीगढ़ ट्रैवल किया था हमने, चंडीगढ़ भी गए थे हम लोग, तो मैं गौरव प्रभु को भी पता है, तो बहुत मतलब मेरे से बहुत गलतियां हो रही थी। तो महाराज, मुझे डर लग रहा था कि महाराज डांटेंगे, एक दो बार डांटा भी, तो मैंने महाराज से रिक्वेस्ट किया था कि महाराज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ, तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो मुझे पता है कि आप मेरे को सही चीज के लिए डांटोगे, लेकिन मैं ज्यादा डांट बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने देखा कि मैंने प्रार्थना किया महाराज से, और उसके बाद महाराज ने ज्यादा डांटा नहीं मेरे को ट्रिप में। हालांकि गलतियां हुई थी, फिर महाराज बता भी रहे थे, लेकिन तो उसके हिसाब से महाराज हर व्यक्ति के लेवल के हिसाब से डील करते हैं। और इसके अलावा जो है महाराज का साधना बहुत स्ट्रांग है। हालांकि महाराज साधना पे जो है ज्यादा, कोई डिवोटी अगर बोलता है कि महाराज सुबह मंगल आरती में आना मुश्किल होगा, तो महाराज जैसे भी हरि भक्तिपुर ने बताया कि उसको बोलते हैं ठीक है आप प्रैक्टिकली जो है देखिए, लेकिन महाराज कभी खुद महाराज कभी मंगल आरती मिस नहीं करते। दूसरे को हो सकता है महाराज अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो महाराज बोले ठीक है आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन महाराज विल ऑलवेज बी देयर मॉर्निंग में रेगुलर। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज हैं, और ये महाराज की स्पेशल मर्सी है कि मुझे पता नहीं था कि ग्लोरिफिकेशन चल रहा था, तो गौरव प्रभु का फोन आया था। तो भले ही मेरा जो है महाराज याद किए
इसी से हमारा मेरा जो है स्पेशली कल्याण हो जाएगा कि महाराज ने रिमेम्बर किया। गौरवपुर ने बोला कि महाराज का ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, महाराज पूछ रहे थे, तो मैं अपने आप को जो है बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मेरा उतना अटैचमेंट नहीं है हियरिंग से, महाराज मैं ज़्यादा सुन नहीं पाता हूँ, तो ये मैं आप सब लोगों को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोग महाराज से हियरिंग कर पा रहे हैं। और महाराज एक ही प्रार्थना है मेरा कि मेरा हियरिंग स्ट्रांग हो, मैं जो है स्पेशली और आपको मैं जो है प्लीज कर पाऊँ। मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, पता नहीं कैसे कर पाऊंगा इस लाइफ में। एक बार भी हृदय से आप बोल सकें, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे आप थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बोले, लेकिन हृदय से आप बोल सकें कि यस आई एम प्लीज्ड। तो अगर ये हो पाए इस लाइफ में तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगा। तो आई विल ट्राई फॉर दिस। और मुझसे जो गलतियां हुई है, महाराज के चरण में अपराध हुआ है, मैं प्रयास करूंगा सुधारने का। तो आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें। महाराज जी आप प्लीज मुझे ब्लेस करें ताकि मैं इन जो है अपने अनर्थों से निकल के और भक्तों का सेवक बन सकूं। क्योंकि मैंने एक बार पूछा था महाराज सबसे टफ क्या है भक्ति में, तो मुझे लगा महाराज बोलेंगे 64 माला करना, 192 राउंड्स करना। ये महाराज ने बोला सबसे टफ है सर्वेंट बनना, और ये रियली में बहुत टफ है। तो मैं अगर सेवक बन पाऊँ डिवोटीज का, जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ईगो है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जैन प्रभु जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, गौरव प्रभु जी को, कि आपने जो है मुझे मौका दिया महाराज के बारे में बोलने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ऑननेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। विनोद प्रभु जी सॉरी, एक और अमर कृष्ण प्रभु को दे सकते हैं थोड़ा शॉर्ट, क्लास भी है इसके बाद में, सो 2 मिनट्स बोल सकते हैं। अमर कृष्ण प्रभु जी आप बोल सकते हैं प्लीज, इफ विनोद प्रभु जी अलाउस। अमर कृष्ण प्रभु जी आपको सुन रहा है? अमर कृष्ण प्रभु जी। रितु माता जी, you would like to speak? Hare Krishna, Dandava Pranam Maharaj. First of all, very happy Obedience Day to all of you, to you. And today I just want to say a few things because I'm very poor speaker. That's why I have not kept my video on. महाराज मुझे आपका एसोसिएशन, I get hardly a live association. मैं आपको बहुत कम मिल पाती हूँ, तो ये मेरा दुर्भाग्य है। और सौभाग्य मेरा ये है कि I have been connected to you, we both, my son and me. तो मुझे इतना चांस नहीं मिलता आपका लाइव एसोसिएशन लेने का। So मेरा जो my only hope is your one, because this is how I got connected to you in 2016-17 when I met you then first time when हमारा temple congregation का जब हमारा यात्रा गया था, दक्षिण भारतीय यात्रा था, so I have heard you first time and that was the turning point of my life. So it's your Vani that have made me connected to you, and that's the only thing which inspired me a lot. Not only a katha, your bhajans, explanation of those bhajans. And so, I'm very poor speaker, Maharaj. I'm very silly, mad, egoistic, sinful, puffed up with pride, a very wicked mind, offensive and fault-finding tendency. I have my own flaws of intelligence, स्वभाव. ये मेरा दोष है कि मैं आपकी जो एसोसिएशन है थोड़ी बहुत अभी मिलती है कि मैं उसका लाभ नहीं उठा पाती हूँ. But the moment I have met you since then और आज तक I have been hearing you regularly. Not a single day I have missed hearing from you. So that is my only solace जो आपकी वाणी है. That is my only hope कि मैं उसको सुन के कुछ अपना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो मदर का मिल्क होता है जो उसको पोषण करता है. Similarly, your katha, your lectures are like they are nourishing me day by day. जैसे बच्चा grow करता है. So this is my only hope, and I really wish कि मैं आपकी जो expectations है मेरे लिए, like you want to be very good devotee, good Vaishnav etiquettes. I really hope कि मैं उस expectations को पूरा कर पाऊँ. And I really pray क्योंकि जो आपका सबसे बड़ा contribution मेरी जो devotional life में ये रहा है कि you have sowed the seeds of Gaur Bhakti is just because of your mercy that I am a very
worshipable deities are my गौर निताई। तो जो भी गौर चरित्र मैंने जो पढ़ा है चैतन्य महाप्रभु का, चाहे वो चैतन्य भागवत है, चाहे वो चैतन्य चरितामृत है या चैतन्य मंगल है, it's all because of your mercy Maharaj, and it has really transformed my life a lot। क्योंकि जब तक हम गौर निताई की भजन या उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानेंगे, we cannot directly reach the mercy of Radha Krishna। So I'm very heartily thankful to you for all your contributions in my life, and I really wish I can fulfill your expectations, and I pray to Sri Gaur Sundar to give you immense potency, that you preach your mission of Mahaprabhu far and wide, and I really pray to Narsingh Bhagwan to give you good health, that you continue your services uninterruptedly। Thanks a lot, Maharaj. Thanks a lot. Thank you, Mataji. Actually, everybody has so much of love and compassion for Maharaj that you have so much to say. But I request everybody to be a little brief in your glorification. So I request Amal Krishna Prabhuji to. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपको बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। परम पूज्य भक्ति आशीष स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण सभी को। महाराज जी हरे कृष्ण दंड प्रणाम। सबसे पहले तो मैं प्रभु जी, विनोद प्रभु जी, गौरव प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सब सुंदर आयोजन किया है और इसमें मुझे बोलने का थोड़ा अवसर प्रदान हुआ है, तो इसके लिए एक बार धन्यवाद पूरी टीम को। महाराज की 61वीं व्यास पूजा पे मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, बताने का प्रयास करूंगा। मेरी ऐसी योग्यता नहीं है कि महाराज का मैं गुणगान कर सकूं, फिर भी मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि महाराज के साथ मुझे थोड़ा संग मिलता है कभी कभार। तो महाराज में बहुत सारे गुण हैं, उनका थोड़ा सा मैं बखान करने का प्रयास करूंगा। महाराज जी स्वभाव को लेकर मैं तो मेरा एक अहंकारी स्वभाव है, मैं अपने आप को बहुत फॉल्स ईगो व्यक्ति हूँ। तो मैं सबसे पहले तो अपना फॉल्स ईगो, जरा अहंकारी स्वभाव महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ कि मेरा ये स्वभाव महाराज की सेवा करते करते एक दिन समाप्त हो जाए, क्योंकि अपने आप में बहुत अहंकारी व्यक्ति हूँ मैं। और मेरा जैसा निम्न स्तर का व्यक्ति महाराज की क्या गुणगान कर सकता है। लेकिन आचार्य व भक्तों से सुना है कि वैष्णव का गुणगान करने से हम भक्ति में जल्दी प्रगति करते हैं। तो ये गुणगान भी मैं अपने स्वार्थ के लिए करने का प्रयास करूंगा, जिससे मेरा कल्याण हो सके। महाराज जी के जन्म के विषय में आपको सबको पता है, ज्येष्ठ मास की सप्तमी के दिन, आज के दिन महाराज का 1961 में जन्म हुआ था। महाराज जी लगभग 38 वर्षों से प्रभुपाद की सेवा में सेवारत है, ये सब आपको पता है। लेकिन इसको बताना जरूरी है कि इतना बड़ा समय एक भगवान की सेवा में देना बहुत बड़ा कार्य है। ये हम लोग सोचते हैं कब बहुत समय हो गया, इतना साल सेवा कर लिया है कब, लेकिन महाराज निरंतर उत्साह के साथ रेगुलर बने रहते हैं। तो दिन रात सेवा कर्मठ होकर महाराज करते हैं। और जैसा कि अभी प्रभु जी बता रहे थे, शंकर सिंह निताय प्रभु की, महाराज के साथ बने रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं महाराज की कृपा के कारण, क्योंकि महाराज की सहन शक्ति बहुत, टॉलरेंस पावर बहुत अधिक है। महाराज हम जैसे मूर्खों को सहन करते हैं, विशेषकर मुझे कई बार सहन करते हैं महाराज। तो महाराज दिन रात कर्मठ होके रूपात के मिशन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। महाराज जी का सबसे बड़ा गुण जो मैंने देखा है, बहुत सारे गुण है महाराज जी में, गुणों के भंडार है महाराज जी, लेकिन मैं देखा हूँ कि प्रभुपाद और अपने गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज के जो मेन मिशन को लेके बहुत समर्पित है, बहुत दृढ़ है महाराज। कभी भी किसी भी चीज को मिस नहीं करते हैं। देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि महाराज जिस प्रकार एक क्षण भी प्रचार प्रसार के कार्य में बिना खराब किए, बिना समय व्यर्थ किए लगे रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानना हो तो उनके नाम से जान सकते हैं, जैसे कि महाराज का नाम है। महाराज का नाम आपको सबको मालूम है, परम पूजनीय भक्ति आश्रय स्वामी महाराज। तो महाराज के नाम में भक्ति का अर्थ है आश्रय, अर्थात शरण देने वाले। वैष्णव का अर्थ आपको सबको पता है, दयालु और कृपालु है। स्वामी अर्थात प्रदान करने वाले हैं। तो कृष्ण प्रेम का संपूर्ण पैकेज अगर देखा जाए तो महाराज के नाम में ही है। महाराज का नाम भी अगर हम ले लेते हैं तो हमारी भक्ति का कुछ अंश पूर्ण हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो महाराज जी कहीं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है हमें, महाराज जी के साथ पूर्ण पैकेज भक्ति का हमें मिल जाता है। अतः महाराज के नाम में, महाराज के नाम के अंदर गुणों का भंडार है। अगर आप देखेंगे तो महाराज जी के व्यक्तित्व के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं अपने व्यक्तित्व
या कुछ लिखने का प्रयास करूं तो मेरे पास शब्द नहीं है महाराज के लिए। महाराज जी प्रीचिंग प्रचार का स्टाइल बहुत अलग निराला है, स्पेशल है, जो आप जानते हैं, जो सब कुछ अनुभव है महाराज के पास। अनुभव के आधार पे महाराज हर व्यक्ति की योग्यता देख के सेवा में लगाते हैं महाराज। महाराज के विषय में अगर गुणों की बात करें तो महाराज को देखने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन की कुछ चंद लाइनें मुझे याद आती है। गंगार परश होइले पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करे, यही तुम्हारे गुण, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मम वैष्णव प्राण। तो यह बात तो बिल्कुल सटीक महाराज के ऊपर लागू होती है। महाराज के दर्शन से हृदय निर्मल और पवित्र हो ही जाता है। मेरा ही नहीं, सबका अनुभव होगा आपका। महाराज जी विनम्रता की बात क्या करें, विनम्रता की खान है महाराज जी। तो ऐसे बहुत सारे गुण महाराज जी के अंदर पाए जाएंगे। फिर भी हम कई बार देखते हैं कि महाराज बाद में अगर देखते हैं तो महाराज कई बार महाराज के साथ हम अपराध करते हैं और महाराज दोनों हाथ जोड़कर कई बार हमें कहते हैं कि ठीक है, ओके। तो ये जब मैं देखता हूँ तो मेरा हृदय कई बार करुणा से भर जाता है और अपने आप को मैं बचा नहीं पाता हूँ कि कितना करुणा भरी है महाराज के अंदर। और महाराज की एक करुणा का उदाहरण मैं देखता हूँ, पिछले साल देखने को मिला है मुझे। एक बार वृंदावन के अंदर महाराज का लेक्चर चल रहा था और महाराज ने एक लेक्चर में संस्कृत में कुछ भजन गाया था और भजन गाने के बाद उस लेक्चर के अंदर वृंदावन चंद महाराज और राधा रमन स्वामी महाराज जी बैठे थे। तो महाराज भजन गाने के बाद बोले ये कि महाराज मुझे संस्कृत नहीं आता, अगर मेरी कोई त्रुटि है तो आप बताइए। कितना विशाल गुण भरी क्लास के अंदर महाराज, कम से कम 700-800 लोग हम क्लास में थे और महाराज बोलते हैं कि मुझे कुछ आता नहीं है, अगर कोई कमी है तो मेरी बताइए। तो इतना सहनशीलता, इतना वैराग्य, इतना मतलब ये महाराज में देखने को मिल सकता है। मैंने तो बहुत लोगों का संग किया लेकिन महाराज जैसा संग मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। वाकई महाराज वैराग्य की एक मूर्ति है अगर आप देखेंगे तो महाराज शुरू से अजमेर बेस पे आते थे तो कभी कभार हमको सेवा मिलती थी, महाराज मेरे यहाँ रुकते थे। महाराज का एक मैं ऐसे एक पास्ट टाइम बताना चाहता हूँ जिसको सुन के आपको लगेगा कि महाराज दीर्घदर्शी है, महाराज को त्रिकालदर्शी, महाराज को आगे कुछ चीजें दिखती है। एक बार महाराज 2 मिनट में, यस गुरु जी पैक कर रहा हूँ प्लीज। महाराज जी एक बार मेरे घर आए थे, महाराज जी प्रसाद पाए थे, उसमें महाराज चले गए यहाँ से। तो महाराज जाते जाते मुझे बोल के गए, अमल कृष्ण प्रभु आप गीता के 11.36 नंबर एक श्लोक है उसका, प्लीज किसी भी प्रकार से आपको जब समय मिले उसका जाप किया करो। तो मैं समझ नहीं पाया महाराज की बात और महाराज चले गए। कुछ समय बाद मेरे घर में कुछ भूत प्रेतों का ऐसी अनहोनी सी होने लगी तो मैंने महाराज को कॉल किया, मैंने महाराज मेरे घर में ऐसी है। तो महाराज ने कहा बताया तो था, मैं आपके 1 साल पहले आया था कि आप करो, आपने क्यों नहीं किया वो। तो महाराज इतने त्रिकालदर्शी है, महाराज को सब चीजें ऑलरेडी दिखती है लेकिन हम महाराज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। पिछले साल महाराज ने एक बात कही थी, इस बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाकी बहुत सारी चीजें महाराज के लिए मैंने बहुत सारा लिखा है लेकिन समय का अभाव है। पिछले साल महाराज का जब लेक्चर हुआ था व्यास पूजा का तो महाराज ने एक बात कही थी कि पूरे जीवन में अगर हम भगवत धाम प्राप्त करना चाहते हैं, भक्तों का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, एक शुद्ध भक्त को पकड़ लेंगे उसके चरणों को तो हम भक्ति में पार हो जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे शुद्ध भक्त तो हमारे जीवन में नहीं है लेकिन महाराज जैसे एक शुद्ध भक्त मेरे जीवन में है। तो मैं तो महाराज आपसे अच्छा शुद्ध भक्त मुझे मिल भी नहीं सकता है। तो मेरे जैसे पतित को अगर आप अपने साथ लेकर और अपने साथ किसी भी प्रकार से सेवा में लगाकर मेरा कल्याण कर सकें और जीवन में अपनाए रखें, ऐसी मैं कामना करता हूँ महाराज। हरे कृष्णा, दंत प्रणाम, आप सभी को धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। अक्षित प्रभु हो जाएगा, हो जाएगा। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। तो महाराज मैं आपके कारण इस्कॉन बीकानेर से कनेक्ट हुआ हूँ। कई आप ही एक कारण बने कि मैंने भगवत गीता का बुक ऑर्डर किया था नेट से आपके लेक्चर सुनने के बाद। तो उसके बाद मेरे जीवन में बहुत 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 परिवर्तन आया है। तो महाराज एक मैं पास टाइम सुन रहा था प्रभुपाद का, जहाँ पे वो प्रभुपाद क्वार्टर्स मायापुर में रहते थे और उनके बाथरूम में वहाँ पे सांप घुस गया था। 2 सांप घुसे थे वहाँ पे। तो रासपरायण प्रभु ने एक सांप को मार दिया था और एक सांप उनको मिला नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो सांप मेरे ही रूप में अभी आपके सामने बात कर रहा है और मेरे हृदय के अंदर उस सांप ने 6 अंडे डाल दिए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो इसके कारण मैं हमेशा प्राइड, एनवी, ये सबका शिकार बहुत ज्यादा बनता हूँ महाराज। तो आप तो शुद्ध भक्त हैं, आप अपने कृष्ण को बुला सकते हैं अपने गरुड़ वाहन में आके कि मेरे हृदय के जो भी सांप रूपी मैल है उनको क्लीन करने के लिए। और महाराज आप जिस तरह
वैष्णव भजन गाते हो, तो वो वैष्णव भजन सुनने के बाद ऐसा मुझको लगता है कि आज का दिन पूरा अच्छा हो गया। और महाराज जी, आपसे ये कहना था कि कुछ समय बाद मेरे को ऐसा लगा था कि मैं भक्ति के पद से गिर जाऊंगा, तो फिर आप ही का लेक्चर मेरे को सहायता दिया था कि भगवत गीता मतलब पढ़ने से आप दृढ़ हो जाओगे। और न्यू ईयर 2022 में आपने एक रेजोल्यूशन बताया था कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। तो कब से मैं वो कर रहा हूँ, कब से मेरा लगभग पहले जितना फॉल डाउन नहीं हो रहा है, अभी भी हो रहा है, मतलब पहले जितना डिविएट नहीं हो रहा हूँ मैं। तो आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और आपने मेरे को अपना चरण धूलि भी प्रदान किया था जब मायापुर आप गए थे। तो जैसे ही मैं उस चरण धूलि को दंडवत प्रणाम करता हूँ तो मेरा चैंटिंग और अच्छा हो जाता है। और अब जब से इस्कॉन आप बीकानेर आए थे जब, तो आपने एक बीकानेर में जपाजिम किया था, तो उसमें आपने जप किया था हमारे साथ बैठ के। तो उस जप के बाद मेरा जप पर्सनली अच्छा हुआ है। मैं ऐसा सोच के करता हूँ कि जब मैं आपके सामने बैठ के कर रहा हूँ, और जब में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, मैं सुन रहा हूँ पहले से ज्यादा। और महाराज आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे बना के रखिए ताकि मैं भक्ति के जीवन में और आगे जा सकूं। हरे कृष्ण महाराज। थैंक यू प्रभु जी। महाराज की जय। तो महाराज का दूसरा हाँ, क्लास अभी क्लास एक बार बस, अभी बाकी ग्लोरिफिकेशन भगवान महाराज को सब लोग पर्सनली भेज सकते हैं। आई थिंक सबने भेजा भी है। वी विल हैव द गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम महाराज नाउ। सो महाराज, आप हमें सबको ब्लेस कीजिए विद योर डिवाइन गोल्डन वर्ड्स प्लीज। हरे कृष्ण। विशेष करके इस जप एकेडमी, गीता एकेडमी के फाउंडर आचार्य विनोद प्रभु जी, आपके श्री चरण में विशेष सादर प्रणाम है। और आपके साथ इस भक्ति के अनुष्ठान, इस गीता एकेडमी में जो अभी ज्वाइन किए हैं और आगे भविष्य में जो भी ज्वाइन करेंगे, ये भगवान की कृपा के भाजन बनेंगे। ये तो आपके प्लानिंग है, हम तो इसमें किसी प्रकार से फिट नहीं है, लेकिन आपकी कृपा ही हमको इसमें डालकर रखा है, इंग्रेडिएंट बना रखा है। बाकी वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इस संसार के सागर को पार करके कोई दिव्य भक्ति सागर में, भक्ति सागर के तरंग में गोता लगाना चाहता है तो बात सुन के एक ही काम करना चाहिए, से नित्यानंद प्रभु के श्री चरण को भजन करना चाहिए, बस यही कहते हैं। और इसी को बल देने के लिए कहते हैं कि हमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, ए बड़ भरोसा चित्ते धरि निरंतर। हमेशा ये भावना रखे कि हमारे प्रभु के प्राण प्रिय प्रभु भगवान गौरांग महाप्रभु है, गौर सुंदर है। और जब भगवान गौर सुंदर ही है हमारे प्रभु के प्रभु, तो फिर चिंता करने का क्या बात है, वो संभाल लेंगे। बने रहो। अभी अभी आम के सीजन चल रहा है, एक आध महीना के पहले वही आम था, हरी हरी आम। पेड़ में जब आम खाते थे खट्टा लगता था, थू थू करके फेंक देते थे, इतने कसा इतने खट्टा बना नहीं। वही आम को आज खाते हैं, इतने रसाल, इतने मीठा, इतने सुंदर लगता है, सुगंध और स्वाद भर गया। कुछ नहीं किया उन्होंने, केवल बने रहा, पेड़ में बने रहा। थोड़ी समस्या तो आया, आंधी तूफान गर्मी वर्षा, वो तो आएगा, उसको सहन करके टिके रहो, दैट्स इट। ऐसे पके हुए सुस्वाद मधुर सुगंध आम बनने में बस
इसी समय बन जाएंगे, इतना ही है। हरे कृष्ण। आप सबके कृपा के आशा करते हुए बस आपके आशीर्वाद की भिक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच गुरुदेव। सो सभी महाराज का स्वागत करेंगे 3 बार महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। सो महाराज का बहुत ही बिजी डे है आज। इतने सारे मंदिर, इतने सारे डिवोटीज वेट कर रहे हैं महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए। सो वी हैव टेकन इनफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम महाराज। सो महाराज की कृपा है, स्पेशल कृपा, हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच गुरुदेव। एंड so thank you so much for all the devotees who have glorified Maharaj. Thank you so much all of you for coming. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna.